Hello students, you're once again welcome to History Online classes. I'm Didi Doda from Saima Education Point, and today in this video we are going to discuss about class 12th history, chapter number 4, thinkers, beliefs and buildings, page number 88, point number 3, beyond worldly pleasures, the message of Mahavira. Here we'll talk about Mahavir Jain. So the basic philosophy of Jainas was already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who came to be known as Mahavira in the 6th century BCE. It means जो महावीर जैन थे, he was born in 6th century BCE and his birth name was Vardhaman. और जब उनका जन्म हुआ था इन 6th century BCE, already in the society in the north part of India, the basic philosophy of Jainism was there in the society. According to Jaina tradition, Mahavira was preceded means के बाद आए थे, preceded by 23 other teachers, means 23 other teachers के बाद आए थे. कौन? महावीरा, महावीर जैन और तीर्थंकर. और उन टीचर्स को क्या बोलते थे? दे वर कॉल्ड तीर्थंकर्स. इट मीन्स महावीर जैन जो थे, ही वॉज 24th तीर्थंकर, लिटरली दोज हु गाइड men and women across the river of existence. तीर्थंकर किसको बोलते हैं? द पर्सन हु गाइड men and women across the river of existence, जो इस संसार से लोगों को, इस संसार रूपी समुद्र से लोगों की जो नदियाँ पार निकालता है उसको बोलते हैं तीर्थंकर. द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड. तो द फिलोसफी ऑफ जैनिज्म इज, द थिंकिंग ऑफ जैनिज्म इज, the teaching of Jainism is that the whole world is animated, means full of life. Even stones, rocks and water have life. So students, this page is very much important. Please read it carefully. No injury to living beings, especially to humans, animals, plants and insects, is central to Jaina philosophy. Central means the main important part of Jaina philosophy is we should not harm, we should not cause any injury to any living being, especially to humans, animals, plants and insects. In fact, the principle of ahimsa emphasized within Jainism has left its mark on Indian thinking as a whole. Means ahimsa का जो मेन उनका जो प्रिंसिपल था, जो उनकी थिंकिंग थी अहिंसा की, दैट हैज़ लेफ्ट अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन इंडियन थिंकिंग. हु अकॉर्डिंग टू जैना टीचर्स, अकॉर्डिंग टू जैना टीचिंग, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा. मीन्स ड्यू टू योर कर्मा, जो भी हम कर्म करते हैं, यू कैन शेप द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. Asceticism means leaving home and penance means punishment, physical punishment are required to free oneself from the cycle of karma. मतलब अगर आप कर्म करोगे, ऐसे कर्म करोगे, ऐसे वर्क करोगे जिसमें आप, एक तो asceticism means घर को त्याग देना, घर को छोड़कर, to go away by leaving home, and penance means to give ourselves strictly physical punishment. That are the main thing that are required to free oneself from the cycle of karma. This can be achieved only by renouncing the world. Renouncing means leaving this world. Therefore monastic existence is necessary. Monastic means to go away from home and live as a monk or nun in monasteries. Monasteries means a place where monk and nun live. जैना मोंक एंड नन टुक 5 वोज. तो जो जैनिज्म होते हैं, जैनिज्म को फॉलो करने वाले होते हैं, जो मोंक एंड नन होते हैं, दे टुक 5 वोज, वो 5 प्रकार की शपथ लेते हैं
टू एब्सटेन, एब्सटेन मीन्स टू कीप अवे फ्रॉम किलिंग, किसी को मारना नहीं है, टू कीप अवे फ्रॉम स्टीलिंग, कोई चीज़ चोरी नहीं करनी, एंड लाइंग, और झूठ नहीं बोलना। टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, सेलिबेसी मीन्स टू लीव दिस वर्ल्ड, टू लीव द प्लेजर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड लिव अ मोनेस्टिक लाइफ, मोनेस्ट्री में जाके रहना। एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, मतलब टू कीप अवे आवर सेल्फ फ्रॉम पोजेसिंग मनी, और मतलब प्रॉपर्टी भी इकट्ठी नहीं करनी, मनी भी इकट्ठी नहीं करनी। ये 5 थिंग्स थी। एक, किसी को मारना नहीं है, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, एब्सटेन फ्रॉम स्टीलिंग, एब्सटेन फ्रॉम लाइंग, एंड 4th number to observe celibacy, and 5th number to abstain from possessing property. These were the 5 most important principles of Jainism. The world beyond the palace, पैलेस से बाहर की दुनिया कैसे होती है? Just as the Buddha's teaching were compiled by his followers, जैसे बुद्धाज की टीचिंग थी, पहले वो ओरल टीचिंग, ओरल एजुकेशन देते थे, टीचिंग उनकी ओरली होती थी, बाद में कई सौ सालों के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनकी जो टीचिंग्स थी उसको कंपाइल किया, बुक्स में लिखा उनको। सेम द टीचिंग ऑफ महावीरा वर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज हिज बाय हिज डिसाइपल्स, तो जो महावीर जैन थे उनकी जो टीचिंग्स थी उसको भी उनके डिसाइपल्स ने रिकॉर्ड किया था। तो दीज वर ऑफन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज़, ये क्या होती थी? स्टोरीज़ के रूप में होती थी। विच कुड अपील टू ऑर्डनरी पीपल, जो ऑर्डनरी पीपल को अपील करती थी। हेयर इज़ वन एग्जाम्पल फ्रॉम अ प्राकृत टेक्स्ट नोन एज उत्तराध्यान सुत। एक उत्तराध्यान सुत है, बुक है, वहाँ से एक प्राकृत टेक्स्ट लिया गया है। प्राकृतिक इज़ अ लैंग्वेज, कौन सी है वे भी बताएंगे आपको नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट एक मैन्युस्क्रिप्ट आएगी, उसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइबिंग हाउ अ क्वीन नेम्ड कमलावती, एक क्वीन थी जिसका नेम था कमलावती, ट्राइड टू परसुएड, परसुएड का मतलब मनाना, हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को मनाने की कोशिश कर रही है, टू रिनाउंस द वर्ल्ड, इस संसार को छोड़ने के लिए, कि आप इस संसार को छोड़ दो और बाहर चले जाओ, जंगलों में रहो, तपस्या करो और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। इफ़, वो क्या कह रही है, कमलावती कहती है, इफ़ द होल वर्ल्ड एंड ऑल इट्स ट्रेजर्स, ट्रेजर्स मीन्स मनी, वर योर्स, अगर ये सारा कुछ तुम्हारा हो जाए, यू वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, फिर भी तुम खुश नहीं होगे, फिर भी तुम सेटिस्फाइड नहीं होगे। नोर वुड ऑल दिस बी एबल टू सेव यू, और ना ही ये सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। व्हेन यू डाई, जब तुम मरोगे, ओ किंग, एंड लीव ऑल थिंग्स बिहाइंड, जब ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी, तो धम अलोन, सिर्फ धर्म ही आपके काम आएगा, एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, विल सेव यू, आपको बचाएगा। क्या? धर्म, धम। एज अ बर्ड डिसलाइक्स द केज, जैसे कि पक्षी पिंजरों को डिसलाइक करते हैं, सो डू आई डिसलाइक द वर्ल्ड, मैं भी इस संसार को डिसलाइक करती हूँ। आई शैल लिव एज ए नन विदाउट ऑफ स्प्रिंग्स, विदाउट डिज़ायर, विदाउट द लव ऑफ गेन एंड विदाउट हेटर्ड, मैं भी एक नन के जैसे बन के रहूँगी, बिना बच्चों के, विदाउट डिज़ायर मीन्स बिना किसी प्रकार के डिज़ायर के, विदाउट लव, विदाउट हेटर्ड। दोज हु हैव एन्जॉयड प्लेजर्स एंड रिनाउंड देम, जो इस संसार में प्लेजर्स को एन्जॉय कर चुके हैं और जिन्होंने इस संसार को छोड़ दिया है, रिनाउंस देम मीन्स छोड़ दिया है। मूव अबाउट लाइक द विंड, वो एक हवा के जैसे उड़ते रहते हैं। एंड गो वेयर एवर दे प्लीज़, और वो जहाँ मर्जी चाहे जा सकते हैं। अनचेक्ड लाइक बर्ड्स इन देयर फ्लाइट, उनको कोई भी चेक करने वाला नहीं होता, जैसे पक्षियों को कोई नहीं होता। लीव योर लार्ज किंगडम, अब वो अपने हस्बैंड को कहती है लीव योर लार्ज किंगडम, अपना ये बड़ा सारा किंगडम छोड़ दो। अबेंडन व्हाट प्लीजेस द सेंसेस, और ये सब कुछ छोड़ दो जो आपको आकर्षित करता है। बी विदाउट अटैचमेंट एंड प्रॉपर्टी, किसी से कोई अटैचमेंट मत रखो, प्रॉपर्टी को छोड़ दो। देन प्रैक्टिस सीवियर पिनेंस, पिनेंस मीन्स फिजिकल पनिशमेंट, मतलब इतनी प्रैक्टिस करो जिसमें आपको फिजिकल पनिशमेंट मिले। बीइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, और फुल ऑफ एनर्जी। तो ये क्वीन
अपने हस्बैंड को इस संसार को छोड़ने के लिए कह रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज 3.1 द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। ग्रेजुअली जैनिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। धीरे धीरे इट स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द बुद्धिस्ट। जैन स्कॉलर्स प्रोड्यूस अ वेल्थ ऑफ लिटरेचर इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज लाइक प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। तो जैसे बुद्धिज़्म ने लिखा वैसे ही जैन जो स्कॉलर थे उन्होंने भी बहुत सारी लिटरेचर लिखी, बहुत सारी बुक्स लिखी, और वो भी किसमें, डिफरेंट वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। फॉर सेंचुरीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ दीज टेक्स्ट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड मीन्स सेव्ड इन लाइब्रेरीज अटैच टू टेम्पल्स। टेम्पल्स के साथ जो लाइब्रेरीज बनी होती थी उनमें उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता था। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हैंड रिटन बुक्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। Some of the earliest stone sculpture associated with the religious traditions were produced by devotees of the Jaina Tirthankars। तो जो अर्ली स्टोन स्कल्पचर है वो जो रिलीजियस ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई हैं वो भी जैन तीर्थंकर के द्वारा लिखी गई थी। एंड हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सेवरल साइट्स, और बहुत सारी जगहों से मिली हैं थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मीन्स थ्रू आउट इंडिया। दिस इज़ वन पेज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये हैंड रिटन है, और ये जो लैंग्वेज है दिस इज़ प्राकृत लैंग्वेज। उस समय जो लैंग्वेज चला करती थी उसको बोलते हैं प्राकृत लैंग्वेज। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली, टिल 3.1 वी हैव डन। रीड इट केयरफुली। क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पार्ट आई विल सेंड यू वेरी soon, that you have to do in your fair notebook, and next point number 4 we will do in next video. Till then, thank you, have a nice day.